Okay, so if you see here, so far we have covered reversible and irreversible cells, EMF of galvanic cells, and gift free energy, Nernst equation, equilibrium constant, all these topics, even concentration cells without transference, all these things we have already covered. So in today's class, we will discuss about types of reversible electrodes, different types of reversible electrodes, and we will see the application of EMF measurements. EMF का application क्या है वो हम देखेंगे, और उससे पहले types of reversible electrodes we will see. So types of reversible electrodes. If you remember, we have already discussed about reversible cells, है ना? अगर आपको याद है तो reversible galvanic cell क्या होता है ना? Reversible cells we have already discussed, है ना? क्या है इसका requirements क्या है? याद है किसी को? बताइए. What are the points we have discussed regarding reversible galvanic cell? Reversible galvanic cell में क्या क्या properties होना है? When equal and opposite current is applied, then there will be no net reaction. So, अगर मान के चलिए जैसे डैनियल सेल हम ले लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस में, उसका सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है. सो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने 1.1 वोल्ट अप्लाई करेंगे, सो द नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 0 volts and there will be no net reaction. याद है? And in second case, if 1.09 volt current is applied in opposite direction, what will happen? 0.01 volt current will pass in same direction, that is from anode to cathode electrons will move. अगर 1.09 वोल्ट करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे, इसका मतलब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल करंट देन द सेल पोटेंशियल, उससे थोड़ा सा कम अप्लाई करेंगे, फिर भी हमें सेम डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, थोड़ा बहुत हमें धीरे से वो रिएक्शन होगा, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पास होगा. इन थर्ड केस, व्हेन -1.11 वोल्ट इज अप्लाइड, which means opposite direction में 1.11 वोल्ट करंट हमने अप्लाई किया, तो क्या होगा? What will happen here? ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट फ्लो होगा. इसका मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से लेकर एनोड के तरफ मूव होगा. यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड के तरफ मूव होता है, लेकिन यहाँ पर कैथोड से एनोड की तरफ मूव हो जाएगा. इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन होगा. इसका पहले जो एनोड था वो अभी कैथोड हो जाएगा, इसका पहले जो कैथोड था वो एनोड हो जाएगा. ऐसे हम रिवर्सिबल सेल के बारे में डिस्कस किए थे, है ना? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रिवर्सिबल सेल्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल हाफ सेल और रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड. सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Okay. So reversible electrodes or reversible half cells. Yes, you take reversible cell, एक reversible cell लेंगे, apparently there will be two half cells which are reversible. In a reversible cell, we have two reversible half cells. है ना? In a reversible cell, we have two reversible half cells. So or reversible electrodes, हमें दो reversible electrodes हमें है. So what do you mean by reversible? Which means अगर reversible electrodes के बारे में one line में हमें कहना है, which means the reversible can act as
either एनोड और कैथोड। सेम जो हाफ सेल है एनोड जैसा काम कर सकता है या कैथोड जैसा भी काम कर सकता है। अगर कोई ऐसे इलेक्ट्रोड है दैट इज नोन एज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। क्लियर? Am I clear? सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A reversible electrode can behave or can act as anode as well as cathode. So जैसे say for example एक इलेक्ट्रोड हम ले रहा है तो एक हाफ सेल हम ले रहा है, so वहां पर रिएक्शन इस तरह का है ना? There the reaction is like this. What is this reaction? Oxidation or reduction? Oxidation. 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 कहां पर होगा? कहां पर होगा? Anode. एनोड पे कि कैथोड पे? Anode. Anode. Which means this electrode is behaving as anode. Yes or no? So Yes, when sir. this electrode is behaving as anode, what is happening? Concentration of M2 plus is increasing. यही ना हो रहा है? जैसे ये जितना ऑक्सीडाइज होता रहेगा उतना M2 plus का concentration बढ़ता जाएगा. So when this electrode is working as anode, the concentration of M2 plus is increasing. Clear? Now, when same electrode is working as cathode, what will happen? Reduction. When the same electrode is working as cathode, what is happening? Here the concentration of metal ion is decreasing. यहाँ पर अगर वो एनोड का जैसे काम कर रहा है तो M2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, अगर वो कैथोड के तरह काम कर रहा है तो M2 प्लस का कंसंट्रेशन घट रहा है कि नहीं? Which means Yes, sir. we can say this cell is reversible with respect to M2 plus ions. ये M2 plus ions के हिसाब से रिवर्सिबल है। ऐसे हम रिवर्सिबल हाफ सेल्स के बारे में या रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के बारे में कह सकता है। So which means reversible electrodes can act as both anode and cathode based on the condition. Okay, clear? Yes, sir. Now, Yes, sir. now we will discuss about different types of reversible electrodes. कई तरह का reversible electrodes हम देखते हैं. So types of reversible electrodes we already know. So first type we will consider metal and metal ion. Metal and metal ion half cell or electrode, reversible electrode. Metal and metal ion reversible electrode. इसका best well known example कौन सा? Zinc and Zn2 plus. ये तो already हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ना? Zinc ion, zinc electrode dipped in zinc sulfate solution. So ये zinc sulfate solution है और ये zinc electrode है. So zinc electrode dipped in zinc sulfate solution. तो ये वाला electrode हम ले रहा है. Clear? Am I clear? Yes, Are you with sir. me? हाँ. So now इसका मतलब हमें क्या है? Zinc rod है और इस solution में अगर cations हम लेंगे तो कौन सा ions है? Zn2 plus ions है, zinc ions है. Now I am imagining or I am treating zinc as Zn2 plus 2 electrons. ये जिंक को मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूं
ये जिंक माने Zn2+ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का दोनों मिलके जिंक बना है। सही है ना, कह सकते हैं ना? Yes, sir. हाँ, हाँ। Yes, sir. So now what will happen if the concentration of Zn2+ of zinc rod is greater than the concentration of Zn2+ of the electrolyte? ये इलेक्ट्रोलाइट में Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन है, हमें Zn2+ आयंस है, और जिंक रॉड में भी उसको Zn2+ जैसे मैंने इमेजिन किया। तो अगर इलेक्ट्रोड में जो Zn2+ आयंस है उसका कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है तो क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? इसका मतलब तब डिफ्यूजन होना चाहिए, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ Zn2+ आयंस मूव होना है। yes or no? yes sir, Then it will leave the electrons on zinc rod and Zn2+ ions will be given to electrolyte, है ना? तो तब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव है, ये Zn2+ आयन सॉल्यूशन में आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव Zn2+ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब कुछ है वापस Zn2+ फिर वापस आके जिंक बन सकता है। इसका मतलब ये दोनों प्रोसेसेस होता रहेगा। जिंक रॉड से Zn2+ आयन सॉल्यूशन में जा रहा है, सॉल्यूशन से Zn2+ आयन जिंक रॉड की तरफ आ रहा है, which means इलेक्ट्रोनेशन एंड डी इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन माने जिंक जो है Zn2+ और इलेक्ट्रॉन जैसे डिवाइड होके ये इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है, इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आया वो वापस इलेक्ट्रोलाइट से Zn2+ को अपने तरफ खींच के इस प्रोसेस को स्लो करके वापस जिंक बना रहे हैं। तो ये दोनों एक स्टेज आने के बाद इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा, वहां पर ये दोनों प्रोसेसेस इक्वल रेट में होगा। So electronation and de-electronation both will happen equally. कह सकता है? yes sir, So now when these two are happening, there will be no net current. कोई ऐसे no net current, ओवरऑल कोई करंट इससे नहीं रहेगा, है ना? लेकिन there is exchange current. एक्सचेंज करंट जैसे मान लो जिंक रॉड से Zn2+ और इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो वहां पर हमें करंट जनरेट हो रहा है। ऐसे करंट को कहते हैं एक्सचेंज करंट। अगर एक्सचेंज करंट की यूनिट एरिया में आप ले रहा है तो एक्सचेंज करंट डेंसिटी हमें आता है। तो अगर एक्सचेंज करंट डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है ना, उसका हम रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे हमें ये दोनों प्रोसेस यहां पर हो रहा है। नाउ consider zinc electrode in case of Daniell cell. Daniell cell में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड जैसे काम कर रहा है कि कैथोड जैसे काम कर रहा है? Anode. हाँ, in Daniell cell जिंक is acting as एनोड, जिंक इलेक्ट्रोड जो है ये एनोड जैसा। But when you connect this सेम जिंक इलेक्ट्रोड विथ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, अगर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के साथ हम कनेक्ट करेंगे इट विल बिहेव एज कैथोड, वहां पर कैथोड जैसा ये बिहेव करेगा ये Zn। सो व्हिच मींस सेम जिंक इलेक्ट्रोड इज बिहेविंग एज एनोड इन वन केस इन वन सेल and it is working as cathode in another cell. So इस टाइप का सेल्स को कहते हैं रिवर्सिबल सेल्स, रिवर्सिबल हाफ सेल और रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। मतलब शॉर्ट वे में कहना है व्हाट इज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड? द इलेक्ट्रोड व्हिच कैन बिहेव एज बोथ एनोड एंड कैथोड, है ना, डिपेंड ऑन सिचुएशन इट कैन बिहेव एज either कैथोड और एनोड, दैट इज नोन एज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. ना, तो ऐसे हम ले सकता है। ओके, नाउ ये मेटल इलेक्ट्रोड का बहुत सारे एग्जांपल है, जिंक, कॉपर वाला, मैग्नीशियम वाला, कुछ भी, है ना, सिल्वर, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें हैं।
Now we will go for another type, that is gas Sir. electrode. सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से भी समझा सकते हैं इसको. Sir, हाइड्रोजन गैस है ना, गैस का अंदर आता है गैस इलेक्ट्रोड. हाँ बेटा बताइए. सब वो एक्सचेंज करंट से नहीं समझ में आया. एक्सचेंज, यहाँ एक्सचेंज है ना बेटा, देखिए इसमें एक्सचेंज ही हो रहा है ना. जब इलेक्ट्रोड से जिंक से Zn2+ अलग हो जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है. कह सकता है? हाँ यस सर. एक मिनट सर, हम क्लास में हैं सर. हाँ हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? यस इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है. इलेक्ट्रोनेशन. लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस जिंक को अपने तरफ खींच सकता है. यस सर. दिस इज डी इलेक्ट्रोनेशन. यस सर. तो इलेक्ट्रोनेशन में कुछ जनरेट आ रहा है करंट, डी इलेक्ट्रोनेशन में भी कुछ करंट आ रहा है. जितना यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उतना यहाँ कंज्यूम हो रहा है. सो दैट इज ओनली एक्सचेंज करंट. ठीक है. तो सर इन दोनों में से जो करंट होंगे सर वो दोनों इक्वल होंगे. दोनों इक्वल है. नेट करंट इज 0. यस सर. ये प्लस है तो ये माइनस है, कैंसिल, 0 इक्वल अमाउंट में आ रहा है ना. क्लियर? तो सर एक्सचेंज करंट सर हम लोग ऐसा एक्सचेंज करंट से एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करेंगे? Exchange current is the current produced in any one of the processes here. इलेक्ट्रोनेशन में इलेक्ट्रोनेशन का वजह से कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज एक्सचेंज करंट. उतना ही करंट डी इलेक्ट्रोनेशन में यूज हो गया. दैट इज देयर इज नो नेट करंट. यस सर. क्लियर है सलोनी? यस सर, नाउ आई एम क्लियर. नाउ कम Thank टू you, sir. गैस. हाँ बेटा बताइए, और कोई डाउट्स? नो सर, थैंक यू बोले हैं. Okay. Now gas electrode, metal ion हो गया. अब गैस, ये तो आप जानते हैं क्या है गैस इलेक्ट्रोड. यूजुअली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं. हाइड्रोजन गैस HCl सॉल्यूशन हम लेते हैं. हाइड्रोजन गैस है, HCl सॉल्यूशन है. अब इलेक्ट्रॉन्स पास होना है. इलेक्ट्रॉन्स तो पास होने के लिए कोई एक कंडक्टर तो चाहिए. उसके लिए प्लैटिनम वायर यूज करेंगे, है ना. तो when gas electrode, say for example we are taking hydrogen electrode, it is behaving as, बताइए यहाँ ये एनोड है कि कैथोड है? एनोड. एनोड. बस यहाँ एनोड जैसा हमें काम कर रहा है. सो यहाँ पर रिएक्शन क्या है? H2 to form 2H plus 2 electrons, या half H2 to form H plus electron, H plus electron, है ना. अगर ये कैथोड जैसा काम कर रहा है तो what will happen? H plus H2 platinum. यहां पर क्या रिएक्शन होगा? H plus electron to form H2, half H2. तो एनोड के केस में H plus का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज हो रहा है सर. इंक्रीज हो रहा है. When it is acting as cathode, what is happening to the concentration of H plus? Decreasing. So H plus concentration is increasing in one case, H plus concentration is decreasing in one case, which means this cell is reversible with respect to H plus ions. This cell is reversible with respect to H plus ions. So same electrode एनोड जैसा behave कर सकता है, कैथोड जैसा behave कर सकता है. We will take another example of gas electrode, chlorine gas electrode. We will take the example of chlorine gas electrode. So chlorine gas Cl2 गैस है तो प्लैटिनम वायर भी होगा. When it is like this, oxidation or reduction? Reduction. Reduction. ध्यान दे दीजिए, this is reduction. क्यों? 0 से लेकर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है. यहां पर
chloride ion concentration is increasing. When it behaves as anode, this is oxidation. In oxidation, chloride ion concentration is decreasing. So this cell is reversible with respect to L minus. chloride ion. This half cell or this electrode is reversible with respect to chloride ion. ऐसे हम गैस electrodes के बारे में देख सकते हैं. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Another electrode. Third one. Metal and sparingly soluble salt. Metal and sparingly soluble salt. इसका एग्जांपल है, ऑलरेडी हमने देख चुका है. जैसे कॉन्सेंट्रेशन सेल में रिवर्सिबल विथ रेस्पेक्ट टू कैटायन है तो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहा था. रिवर्सिबल विथ रेस्पेक्ट टू एनायन है तो कौन सा एग्जांपल मैंने बताया था वहां पर? सिल्वर क्लोराइड. सो यहाँ पर हमने एग्जांपल देख सकता है सिल्वर क्लोराइड. सो सिल्वर क्लोराइड it is a sparingly soluble salt. मतलब उतना अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता है वो sparingly soluble salt. So AgCl in chloride ion solution. HCl हो सकता है कोई भी, है ना, aqueous chloride. Now यहाँ बताइए, is it oxidation or reduction? ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? Oxidation. ऑक्सीडेशन. दिस इज ऑक्सीडेशन. कैसे? Ag is reacting with chloride ion to form AgCl plus electron. Ag जो है क्लोराइड आयन से रिएक्ट होके AgCl बना रहा है. So here the concentration of chloride ion is, हाँ बताइए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Decreasing. When same electrode behaves as cathode, क्या होगा? कैथोड के केस में AgCl ना, so chloride ion AgCl to Ag. यहां पर क्या हो जा रहा है? AgCl is reacting with electron to form Ag plus chloride ion. ठीक है, AgCl हमें Ag बना रहा है, leaving chloride ion. Here chloride ion का concentration क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. Which means this cell is reversible with respect to Chloride ion. इसीलिए इसका सेल नोटेशन जब लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं EAG क्लोराइड आयन. इसका ई सेल लिखना है तो ऐसे लिखते हैं EAG कामा क्लोराइड आयन, कामा या स्लैश जो भी लगा सकते हैं, ऐसे हम दिखा सकते हैं. क्लियर? सर सेल नोटेशन है? ये कौन सा सेल नोटेशन नहीं है, ये तो सेल पोटेंशियल है. ये सेल नोटेशन है. हाँ. सेल पोटेंशियल जब लिखते हैं ई सेल, उसको ऐसे दिखाते हैं. ओके, हाफ सेल. हाँ बताइए. बताइए सर, जब सेल नोटेशन लिखा गया है इसको देख के कैसे पहचान लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है? आप देखिए, सिल्वर का देखिए ऐसे है ना, किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, सबको देखिए. यहाँ कौन कौन है? क्लोरीन है, सिल्वर है, यही दोनों है ना. जी सर. हाँ, नाउ कम टू क्लोराइड आयन. इसमें क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1. AgCl में क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1. इसका मतलब क्लोराइड का ऑक्सीजन स्टेट में कोई चेंज
नहीं हो रहा है। नहीं है, तो बचा कौन? सिल्वर। सो सिल्वर में देखिए यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 0 है, विच मीन्स सिल्वर इज बीइंग रिड्यूस्ड ओके सर, बिकॉज ठीक है। ऑफ क्लोराइड आयन। ओके सर, हाँ, तो एक Thank और you. एग्जांपल हम देखते हैं मेटल एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। सुना होंगे ना, सुने थे कैलोमल इलेक्ट्रोड? Yes, sir. Hg2Cl2, दिस इज नोन एज कैलोमल। Hg2Cl2 को कैलोमल कहते हैं। ओके, हाँ, कैलोमल इलेक्ट्रोड। सो नाउ say for example when it is behaving as anode, ये एनोड जैसा काम कर रहा है, तो सेल नोटेशन कैसे होगा? हाफ सेल नोटेशन है। सेल नोटेशन माने यहाँ हाफ सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। Hg2Cl2, Hg2Cl2, and the solution is KCl solution, KCl solution, KCl solution में हम लेते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे mercury तो लिक्विड है ना, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें प्लैटिनम वायर का भी जरूरत पड़ता है, प्लैटिनम वायर का भी जरूरत पड़ता है। अब बताइए ये कौन सा ऑक्सीजन या रिडक्शन है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? मरकरी। मर्क्यूरी। सो रिएक्शन बताइए। Hg 2Hg 2Hg plus chloride right. to form Hg2 Hg2Cl2 Cl2 plus 2 2 electrons। electrons। अगर ये कैथोड जैसा बिहेव करेंगे तो क्या होगा? कैथोड जैसा अभी बिहेव करना है तो KCl सॉल्यूशन है हमें। ये इलेक्ट्रोलाइट है ना? अगर एनोड है इलेक्ट्रोलाइट लास्ट में, कैथोड है इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट में। हाँ, रेड्यूस कौन होगा? Hg2Cl2। कैसे रेड्यूस होगा? Hg जैसा। Hg को कैसे कनेक्ट करेंगे? प्लैटिनम वायर से। तो यह रिएक्शन क्या है? Hg2Cl2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके 2Hg प्लस 2Cl माइनस। अच्छा ये बताइए ये किसका रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल है? दिस सेल इज रिवर्सिबल विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच आयन? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। सिंपल। क्यों? यहां पर जब ये एनोड जैसा काम कर रहा है तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज डिक्रीजिंग। When it is behaving as cathode, the concentration of chloride ion is increasing. So it is reversible with respect to chloride ion. ऐसे हम कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में भी देख सकते हैं। Am I clear? Yes sir. Now एक और वैरायटी हम देखते हैं, फोर्थ वन, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड आसान है। अगर आपको सेल नोटेशन, सेल रिएक्शन लिखना वो कैसे लिखता है उतना समझ में आया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बहुत आसान है। बहुत बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से डरते हैं, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इजी क्वेश्चंस है उसको छोड़ के आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस उठाइए, कितना आसान होगा आपको चेक करिए ना। यूजुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक और चैप्टर है क्वांटम केमिस्ट्री, ये दोनों से बच्चों डरते हैं, उसको छोड़ के आता है। थोड़ा मीडियम बच्चे रहता है जो थर्मोडायनेमिक्स को, कुछ बच्चे जो है वो मीडियम मानते हैं, कुछ स्टेज तक कर पाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ये सब देख के क्या सेल नोटेशन है, क्या रिएक्शन है, छोड़ के सोच के छोड़ देते हैं। लेकिन ये आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। ओके, सो नाउ रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। यहाँ पर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड माने सेम आयन, मतलब सेम मेटल का आयन जो है दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होगा। सेम metal ion will present in different oxidation states. Say for example here we are taking, अगर ऑक्सीडेशन लेना है, ऑक्सीडेशन है तो इसका मतलब Fe2+2 या Fe3+, Fe2+2 Fe3+, and we are connecting by using platinum.
क्योंकि ये तो आयन से इलेक्ट्रोलाइट में रहेगा, कनेक्ट करने के लिए प्लैटिनम हम ले रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, Fe2 प्लस टू फॉर्म Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर ये रिडक्शन है तो क्या होगा, नोटेशन Fe3 plus is reducing to form Fe2 plus and we are connecting through platinum wire. So reaction is Fe3 plus will take electron to form Fe2 plus. हाँ, इसमें किसके रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल है बताइए? सर ये तो दोनों के रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल हो सकता है ना? So it is reversible with respect to either Fe2 plus or Fe3 plus. क्यों? क्योंकि यहाँ देखेंगे Fe3 plus का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है लेकिन यहाँ घट रहा है, इसका मतलब Fe3 plus का रेस्पेक्ट में वो रिवर्सिबल है। फिर Fe2 plus का भी देखिए, यहाँ Fe2 plus का Fe2 plus का घट रहा है, यहाँ Fe2 plus का बढ़ रहा है, इसका मतलब ये Fe2 plus का भी रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल है। सो इट कैन बी रिवर्सिबल विथ रेस्पेक्ट टू either Fe2 plus और Fe3 plus। ऐसे हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंट टाइप्स का बारे में देख सकते हैं। क्लियर? यस सर। एप्लीकेशन ऑफ EMF measurements. So first application is about pH. pH को कैसे निकाल सकता है ना? What do you mean by pH? What is pH? Negative logarithm of the concentration of H plus in the given solution. Negative logarithm of H plus Concentration of H plus. ion concentration. Negative logarithm of H plus ion concentration. यहाँ H plus ion concentration लेंगे, उसका नेगेटिव लॉगरिथम को हम कहते हैं pH. क्लियर? Yes sir. हाँ. Now कोई भी सॉल्यूशन का pH निकालने के लिए कैसे हम निकाल सकते हैं? सो उसके लिए फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके कैसे निकाल सकता है कोई भी अननोन सॉल्यूशन का pH, कैसे हम निकाल सकता है वो हम देखते हैं। से फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है ना, तो अगर ये ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है तो वो आप जानते हैं, रिडक्शन हो रहा है तो वो भी जानते हैं। बताइए से फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज वर्किंग एज एनोड, ये एनोड जैसा काम कर रहा है। हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके कोई भी सॉल्यूशन का अननोन pH है उसका हमें निकालना है। तो इसीलिए जिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जैसे प्लैटिनम वायर से हाइड्रोजन गैस को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, और जिस सॉल्यूशन का आपको निकालना है H+ वो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका कंसंट्रेशन आप निकालना है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर। क्लियर? समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? जिसका pH आप निकालना है। अच्छा, मतलब वो जो H+ आयन जो आएंगे वो इलेक्ट्रोलाइट क्या आएंगे यहाँ पे? हाँ, H+ आयन जो है, देखिए मैंने एक HCl सॉल्यूशन आपको दिया हूं और इस HCl सॉल्यूशन का pH आप निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? तो जिस HCl सॉल्यूशन का pH आप निकालना है ना, उसको यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जैसे लेंगे। यहाँ H+ एक्वा जो है ये अननोन सॉल्यूशन है। ये कौन है? ये अननोन सॉल्यूशन है। अननोन pH है ना, इसका अननोन pH है। क्लियर? अब ये एनोड जैसा काम कर रहा है, तो इसका रिएक्शन बताइए।
एनोड जैसे काम करे, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि H2 से H plus platinum sir. H2 reaction में platinum Reaction. Half of H2 will give you H plus electron. H plus electron. ये हमारा रिएक्शन है. Am I clear? Yes sir. So इससे E H plus to H2 Excuse हाफ me, सेल sir. पोटेंशियल क्या होगा? हाँ बेटा बताइए. सर ये जरूरी है क्या कि जो हमारे अननोन सॉल्यूशन हो उसमें H का कंसंट्रेशन हो ही? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे अननोन जो सॉल्यूशन दिया गया है हो सकता है उसमें H की कंसंट्रेशन हो ही ना. हाँ अभी Composition- H plus का कंसंट्रेशन नहीं पता है हमें. नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि जैसे इस केस में अननोन HCl को आपने लिया है, हाँ ऐसा भी तो मतलब हमें पता तो है नहीं वो अननोन सॉल्यूशन क्या है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें H हो ही ना. नहीं यहाँ पर हम HCl सॉल्यूशन दे रहे हैं. आपको तो इतना बताएगा कि हम आपको HCl सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन निकालिए. यस सर. है ना. अगर नहीं पता है तो पहले तो ये चेक करेंगे कि आपको जो दिया है वो कौन सा सॉल्यूशन है. ठीक है. तो सर वो अननोन कैसे जाएगा फिर? हाँ बेटा. पहले ही पता चल गया सर, जब पहले ही पता चल गया कि अननोन का बगल में कुछ और मैं लिखा हूं. देखिए क्या लिखा हूं. pH. अननोन pH माने सॉल्यूशन अननोन नहीं है, सॉल्यूशन का pH अननोन है. ओके सर. सॉल्यूशन ऑफ, अगर चाहे तो लिखिए सॉल्यूशन ऑफ अननोन pH. ओके. सॉल्यूशन ऑफ अननोन pH या HCl सॉल्यूशन ऑफ अननोन pH. क्लियर. हाँ HCl सॉल्यूशन दे रहा हूं और उसका pH मुझे नहीं मालूम है, माने उसका कंसंट्रेशन मुझे नहीं मालूम है, तो आप pH निकालो. ये क्वेश्चन है. हाँ अब बताइए इसका. सर हाँ. अगर HCl की जगह NaCl दे दे तो क्या करेंगे सर? उसमें तो आगे देखेंगे ना बेटा. अगर HCl का जगह NaCl देंगे तो क्या करेंगे वो आगे देखेंगे. अभी इसका एप्लीकेशन H प्लस का कंसंट्रेशन को निकालने के लिए. ठीक है. ओके सर. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये इसका इस्तेमाल हम इसीलिए करेंगे कि क्या है H प्लस का कंसंट्रेशन माने उसका pH निकालने का एप्लीकेशन है ना. अगर दूसरा आयन से क्या करेंगे वो आगे देखेंगे, कोई और इलेक्ट्रोड होगा उसके लिए. ठीक है. यस सर. हाँ अब बताइए इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा. 0. नहीं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पूछ रहा हूं मैंने, इसका सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा. रिडक्शन पोटेंशियल लास्ट इक्वेशन बताइए यार. Last equation. याद नहीं E है. is equals to E naught minus. हाँ E नॉट H प्लस टू H2 माइनस minus 2.30 माने उसका वैल्यू 0.0591 0.0591 बाय N. n मोल. कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन. 1 molar. इनटू लॉग. बताइए. Oxidation upon reduction. हैं? H plus. क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो यहाँ क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में? H plus. गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि क्या लिख रहे हैं हमने? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूं? रिडक्शन पोटेंशियल. रिएक्शन क्या लिखा है ये? Oxidation. ऑक्सीडेशन. लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? ये रिडक्शन पोटेंशियल. Reduction. तब तो हमें रिएक्शन को कैसे सोचना है? उल्टा सोचना है. रिएक्शन को ऐसे सोचना है क्योंकि आप लिखने जा रहे हो कि रिडक्शन पोटेंशियल. अब प्रोडक्ट क्या है बताइए? H2. H2 concentration power 1/2 divided by H plus concentration. सही है. But the standard reduction potential of hydrogen electrode is 0. That implies E H plus
H2 is equal to minus 0.0591 log 1 by H plus concentration. सही है? That is equal to minus 0.0591 ब्रैकेट में माइनस लॉग ऑफ H प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर -1 आएगा, पावर -1 को सामने ले आया तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस होगा, लेकिन माइनस लॉग H प्लस किसका बराबर है? pH के। pH. Therefore H plus है ना, सेल हाफ सेल पोटेंशियल H plus to H2 is equal to 0.0591 pH. यहां तक क्लियर है कि कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है? नो, अभी हमें हाफ सेल पोटेंशियल आया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल हमें आना है तो टोटल फुल सेल को कंस्ट्रक्ट करना है ना। ये हाफ सेल से हमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए टोटल कंप्लीट सेल होना है, विच मींस ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो रिडक्शन हाफ सेल भी हमें यूज करना है। सो फॉर दैट वी यूज Calomel electrode, use Calomel electrode as cathode. Calomel electrode को कैथोड जैसा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसे यूज करेंगे तो वो दूसरा हाफ सेल आ जाएगा। अब बताइए तो पूरा सेल रिएक्शन, सेल नोटेशन क्या होगा? प्लैटिनम हाइड्रोजन वाले को आपने एनोड जैसे ले लिया, ये अननोन पीएच वाला। अब इसको हम कनेक्ट कर रहा है कैलोमेल इलेक्ट्रोड से, तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड में क्या है? KCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ताकि उसका ई सेल वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। Hg2Cl2, ये तो रिडक्शन है Hg, इसको भी प्लैटिनम वायर से हम कनेक्ट करेंगे। क्लियर? अब सेल, पूरा सेल मैंने कंस्ट्रक्ट किया हूं, इसमें जिसका निकालना है वो एनोड है, रेफरेंस है कैलोमेल इलेक्ट्रोड है। क्लियर है? यस सर। Therefore E सेल क्या होगा? इज इक्वल टू E कैलोमेल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, E कैलोमेल माने कैलोमेल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस बताइए E H प्लस टू H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। सही है? सही है ना? हाँ। अब कैलोमेल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फिक्स्ड है क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया, इसका वैल्यू है 0.2422 माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया? माइनस 0.591 into pH E cell. Clear? Yes sir. That implies E cell is equal to 0.2422 plus 0.0591 pH into pH. हमें pH चाहिए तो इसको यहां रहने दीजिए, इसको इस तरफ ले आइए। That implies 0.0591 into pH is equal to E cell minus 0.2422. Therefore pH is equal to E cell minus 0.2422 divided by 0.0591.
ई सेल वैल्यू पोटेंशियोमीटर यूज करके, क्योंकि सेल तो कंस्ट्रक्ट हो गया है, पोटेंशियोमीटर रीडिंग आ जाएगा। सो पोटेंशियोमीटर से ई सेल आ गया, बाकी वैल्यूज हमारे पास है, तो पीएच हमें आ जाए। ऐसे हम पीएच को निकाल सकते हैं। कोई डाउट्स? कोई डाउट्स है इस टॉपिक में या क्लियर है? सेल कैसे मैंने कंस्ट्रक्ट किया, सब में आया? सर हाँ बता। इसमें कैलमल जो हमारा कैथोड एज हम लोग कैथोड इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो हमेशा से रेफरेंस में से उसी को लेंगे? हमेशा मान लो कैथोड जैसे ही लेंगे, वो कह रहा है। हाँ वही कह रहे हैं, रेफरेंस में देखिए, हमेशा कैलमल लेंगे। क्योंकि देखिए यहां पर हमने इसका वैल्यू कितना 0.2422 ना। यस सर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर स्टैंडर्ड देखेंगे तो 0 है। हाँ अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए या कुछ चेंज करे 0.05 या 0. मैक्सिमम 0.1 ऐसे जाएगा ना, तो किसका वैल्यू ज्यादा है? कैलमल का। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैसे बिहेव करेगा? जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जिनका ज्यादा रिडक्शन ज्यादा है वो कैसे बिहेव करेगा? कैथोड की तरह। कैथोड की तरह, इसीलिए इसको कैथोड जैसे मैंने कनेक्ट किया। मान लो लॉजिक मैंने अप्लाई किया, ठीक है? यस सर। और कोई डाउट्स है बेटा? यस सर। एनीवन एल्स? टॉपिक क्लियर है? यस सर। सो ऐसे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके हम अननोन पीएच को निकाल सकता है। एक सॉल्यूशन का अननोन पीएच को निकाल सकता है। नाउ वी विल सी अनदर एप्लीकेशन, अनदर सेल, एक और सेल देखेंगे जिसको यूज करके पीएच आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाएगा। इतना तो जानते हैं ना, क्योंकि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकता है। हाँ नाउ अभी हम एक और इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ये क्या है देखते हैं। सो दिस इज नोन एज क्विनोन। इसको क्या कहते हैं? क्विनोन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये H+ से रिड्यूस होके हमें हाइड्रोक्विनोन देगा। हाइड्रोक्विनोन। सो ये रेड्यूस्ड फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। क्विनोन जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और हाइड्रोक्विनोन है रेड्यूस्ड फॉर्म, मान लो खुद रेड्यूस हो गया। क्लियर? क्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, इन दोनों को, क्विनोन को और हाइड्रोक्विनोन को, दोनों को इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स करेंगे, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स करेंगे। तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं क्विन हाइड्रोन। इस मिक्सचर को कहते हैं क्विन हाइड्रोन। क्लियर है? जो शब्द मैं कह रहा हूं सब में आ रहा है? क्विनोन मैंने लिया हूं, हाइड्रोक्विनोन लिया हूं, दोनों को इक्विमोलर अमाउंट्स में मिक्स किया है, तो इस मिक्सचर को क्विन हाइड्रोन कहते हैं। इसको यूज करके हम कोई भी एक सॉल्यूशन का अननोन पीएच हम निकाल सकते हैं।
Am I clear? यस सर। समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन समझ में आया क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का? सर रिपीट कर दीजिए। रिपीट करें। ओके, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, इसके लिए हम ले रहा है क्विनोन। क्विनोन माने ये है, अगर इसको शॉर्ट पे लिखना है तो कितना है बताइए? C6H4O2। C6H4O2 को H प्लस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? C6H6O2 माने हाइड्रोक्विनोन देगा, हाइड्रोक्विनोन। अब ये क्विनोन हाइड्रोक्विनोन इन दोनों का मिक्सचर हमने ले रहा है इक्वल अमाउंट में, मतलब थोड़ा सा पिंच, अ पिंच ऑफ मिक्सचर इज एनफ फॉर द रिएक्शन। मतलब इस सेल के लिए पिंच थोड़ा सा लेंगे तो उतना काफी है। सो लेकिन दोनों को इक्विमोलर हम लेंगे, दोनों को इक्विमोलर हम ले लेते हैं, ठीक है? तो जब ये इक्विमोलर लेंगे तो हमें इस मिक्सचर को क्विन हाइड्रोन कहते हैं। अब ये क्विन हाइड्रोन को यूज करके हम एक अननोन सॉल्यूशन का पीएच निकालेंगे। क्लियर? Am I clear? यस सर। हाँ। Yes, sir. सो इसके लिए हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता है, सेल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता है, वो अगर हम देखेंगे, क्विन हाइड्रोन पिंच ऑफ साल्ट हमने ले लिया, तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? सॉल्यूशन उसका बनाते हैं। एक साल्ट जैसा है, सॉल्यूशन बनेगा, कनेक्ट कैसे करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन कैसे पास होगा? इलेक्ट्रॉन तो वायर से पास होता है। कौन सा वायर? प्लेटिनम। प्लैटिनम। इसका मतलब हमें क्लू क्या मिल रहा है? इसमें प्लैटिनम यूज करना है ना? क्लियर है? प्लैटिनम यूज करना है। तो क्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन है, प्लैटिनम वायर है, किस जिनका पीएच हमें निकालना है उसको इलेक्ट्रोलाइट जैसा यूज करेंगे, मतलब उसी में इसको डालते हैं। क्विन हाइड्रोन को, पिंच ऑफ साल्ट को जिस सॉल्यूशन का आप पीएच निकालना है उसी में डालते हैं। तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोलाइट कौन हो गया? जिनका अननोन पीएच है वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड हो गया, इसको कनेक्ट करने के लिए प्लैटिनम वायर हो गया। अब इसको कैथोड जैसे यूज करेंगे या एनोड जैसे यूज करेंगे? हमें रेफरेंस दूसरा हाफ सेल कौन सा है? रेफरेंस हाफ सेल जैसे यूज किया था कैलोमेल हाफ सेल यूज करेंगे। रेफरेंस हाफ सेल किसको यूज करेंगे? कैलोमेल हाफ सेल। अब कैलोमेल हाफ सेल का रेंज देखेंगे तो 0.2422 0.2422 इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम देखेंगे। Q और QH2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0.6996। कैलोमेल इलेक्ट्रोड का कितना? 0.2422। 0.2422। अब बताइए हमारे सेल को कैसे यूज करेंगे? इसको क्विनोन को कैथोड की जगह इस्तेमाल करेंगे। बस यही बताने के लिए मैं इतना लंबा बताया। अब हमें क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड जैसे यूज करेंगे, कैलोमेल इलेक्ट्रोड को यहां पर एनोड जैसे यूज करेंगे। Am I clear? Any doubts? यस कोई सर, डाउट एक बात बताइए जी। सर, जो क्वीन हाइड्रोन है सर, वो जो अननोन हमारा अननोन पीएच का सर जो इलेक्ट्रोलाइट है सर, उसको उसमें ऐड कर रहे हैं जी। इलेक्ट्रोलाइट वाले को एक बेकर में ले लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट है जिनका पीएच आप निकालना है, इसका माने ये H प्लस सॉल्यूशन है जिसका पीएच निकालना है। इसमें थोड़ा सा स्पैचुला ले लेंगे, स्पैचुला से पिंच ऑफ दिस मिक्सचर इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है? जैसे पानी में आप चीनी डाल के पीते हैं वैसे ही है, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ क्विन हाइड्रोजन आपने डाला। अब इस मिक्सचर को कनेक्ट करने के लिए प्लैटिनम वायर आपने यूज किया। इस प्लैटिनम वायर को यहां पर कैलोमेल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड कैसे रहता है? कैलोमेल इलेक्ट्रोड में अगर आप देखेंगे, कैलोमेल इलेक्ट्रोड का इस तरह रहता है। देखिए मैं कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहा हूं कैलोमेल इलेक्ट्रोड कैसे रहता है।
इसमें भी तो हमें प्लैटिनम वायर को यूज करना है ना। हाँ स्ट्रेट लाइन है, ये प्लैटिनम वायर है, ठीक है। यहाँ ऊपर पहले मर्क्यूरी लेंगे, ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, और इस मर्क्यूरी का नीचे हम मर्क्यूरी और HgCl2 दोनों का मिक्सचर ले लेंगे। ये मर्क्यूरी है और ये HgCl2, Hg2Cl2 और मर्क्यूरी दोनों का मिक्सचर है, और नीचे एक पोरस प्लग रख देंगे। पोरस प्लग यहाँ पर पोरस प्लग माने मतलब इससे जो आयन्स आना है वो नीचे आएगा, मतलब क्लोराइड आयन है ना, क्लोराइड आयन का ट्रांसफर होना है, तो इसीलिए पोरस प्लग यहाँ पर हम यूज करेंगे। फिर इसका भी एक पोरस प्लग रहेगा। इस पोरस प्लग को जिसका पीएच निकालना है उस सॉल्यूशन में है, ये आपका पीएच निकालने वाला सॉल्यूशन है, और ये दोनों को प्लैटिनम वायर हम कनेक्ट करते हैं। ये H+ सॉल्यूशन ऐसे रहेगा कंस्ट्रक्शन, अगर आप इमेजिन करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, अब हमारा एक्चुअली ये उल्टा है ना, मतलब ये एनोड है तो कैथोड को इस तरफ रख देंगे, ये वायर को इस तरफ रख देते हैं, ठीक है। हाँ नाउ अब देखिए, अभी हमें कहां तक आया, इतना पता चला कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड को एनोड जैसे कनेक्ट करिए और आपका क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड जैसे कनेक्ट करिए। अब सेल नोटेशन बताइए, यही तो मेन स्टेप है। ये आ गया तो सब कुछ आ गया। सेल नोटेशन बताइए, एनोड कौन है? कैलोमेल। कैलोमेल किससे कनेक्ट करेंगे? प्लैटिनम वायर। प्लैटिनम वायर, देन यहाँ ऑक्सीडेशन है, हाँ HgCl2, Hg2Cl2, Hg2Cl2 सॉरी, हाँ, और HCl यहाँ H+, एक्वास। H+। एक मिनट, ये कैलोमेल ना, कैलोमेल में कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं? कैलोमेल में कौन सा सॉल्यूशन हम लेंगे? KCl ना, कैलोमेल में तो KCl सॉल्यूशन लेंगे ना। हाँ ये तो सैचुरेटेड KCl। उसके बाद दूसरे वाले में H+ हम ले रहे हैं, H+ एक्वास, जिनका अननोन pH। हाँ अब हाँ रिड्यूस, अभी रिडक्शन है, माने ऑक्सीडेशन फॉर्म कौन सा? Q। रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सा? QH2। किससे कनेक्ट करेंगे? प्लैटिनम वायर। बस ये आपका सेल नोटेशन। इसमें कोई डाउट्स है बताइए। ये मेन स्टेप है, यही तो मेन है, इससे सब कुछ हम करेंगे आगे। इसमें कोई डाउट है? लेफ्ट हैंड साइड कैलोमेल इलेक्ट्रोड ले लिया, कैलोमेल इलेक्ट्रोड में सैचुरेटेड KCl यूज करेंगे। राइट हैंड साइड क्विन हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड यूज किया, क्विन हाइड्रोजन को अननोन जो pH है उसी में ऐड करते हैं और ऐसे लेते हैं। ओके, यहां पर एक पॉइंट है, आपने क्विन हाइड्रोजन को H+ सॉल्यूशन में डाल रहा है ना? यस हाँ तो H+ सॉल्यूशन में जब आप डाल रहा है तो pH मान लो जिनका pH 7 से कम है, pH 7 से कम है तो एसिडिक फॉर्म होगा HCl सॉल्यूशन, हाँ एसिडिक फॉर्म होगा। इसका मतलब एसिडिक फॉर्म में है, तो एसिडिक फॉर्म में ये QH2 जो है वीक एसिड जैसा हमें बिहेव करेगा, ये वीक एसिड जैसा बिहेव करेगा, माने ये QH2 से Q और H+ वो आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका pH जो है 8 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? वो अल्कलीन हो जाएगा। 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा तो सॉल्यूशन क्या होगा? 8 या उससे ज्यादा, ठीक है, अल्कलीन। अल्कलाइन हो जाएगा, माने ये बेस है, अब ये बेस जैसा बिहेव करेगा और ये बेस आके आपका QH2 से रिएक्ट कर लेगा, है ना? ये वीक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे काम करेगा।
तब क्या होगा, QH2 से बहुत ही ज्यादा Q आ जाएगा। तो कौन सा फॉर्म ज्यादा रहेगा, QH2 फॉर्म ज्यादा रहेगा कि Q फॉर्म? Q फॉर्म। लेकिन हमारा कंडीशन क्या था, दोनों बराबर होना है ना। यस सर। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्यों दोनों बराबर होना है वो अभी हम देखते हैं, बराबर क्यों होना है वो हम देखते हैं। लेकिन अगर आउटलाइन लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसको बस मन में रखिए। अब आगे हम देखते हैं। तो सेल नोटेशन में कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स? नहीं है? ओके, तो नाउ ई सेल क्या होगा बताइए। सही है। एल ई क्विनहाइड्रोन माइनस ई कैलोमेल, क्योंकि क्विनहाइड्रोन वाला रिडक्शन ये है, रिडक्शन ही हो रहा था, कैथोड जैसे काम कर रहा है, कैलोमेल वाला एनोड जैसे काम कर रहा है, इसलिए हम माइनस है। सही है? इज इट करेक्ट? यस सर। That implies E cell is equal to, हाँ अब इसका नेक्स्ट इक्वेशन से बताइए। E नॉट Q2 QH2 माइनस 0.0591 by 2 log, बताइए रिडक्शन रिएक्शन था, क्या था रिडक्शन रिएक्शन? Q plus 2H plus 2 electrons to form QH2। हाँ बताइए, log concentration of QH2 divided by concentration of Q into concentration of H plus square। Is it correct? Yes sir। यस अब सर। देखिए, अब ये दोनों का कंडीशन क्या लिया, तो दोनों बराबर है, Q और QH2 दोनों इक्विमोलर बराबर लिया, तब कैंसिल होगा। इसीलिए अगर अल्कलाइन लेंगे तो बराबर नहीं होगा, तो ऐसे कैंसिल नहीं होगा ना। नहीं। हाँ, इसीलिए इसका एक लिमिट है, क्या है, 7 से कम pH के लिए ही इसको यूज कर सकता है। 7 से ज्यादा pH है तो यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उस समय QH2 जो वीक एसिड जैसा काम कर रहा था वो बहुत ज्यादा आयोनाइज हो जाएगा और Q और QH2 का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं रहेगा, तब यहां पर हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन 7 pH तक आराम से यूज कर सकता है ना? यस सर। हाँ, तो बताइए क्या होगा इसका? सर माइनस ई ऑफ कैलोमेल तो कर दीजिए। हाँ बेटा, सर माइनस ई ऑफ कैलोमेल माइनस ई कैलोमेल 0.242। इसका वैल्यू 0.6996 माइनस 0.0591 by 2, इसका माइनस लॉग H प्लस स्क्वायर लिख सकता है ना, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में लाया। सही है? यस सर। माइनस 0.2422 करेक्ट? यस सर। अब ये 2 को सामने लाइए, क्या हो जाएगा? नीचे वाले से कैंसिल 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस, देयरफॉर E cell is equal to क्या था? 0.6996 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 0.0591 by 2 into 2 log H plus concentration। अच्छा, नहीं तो ये माइनस ही रहने दीजिए क्योंकि हमें pH जैसे लिख सकते हैं ना। यस सर। तो ये माइनस ही रहने दीजिए, यहाँ पर भी माइनस ही रहने देते हैं ताकि pH जैसे लिखे। ओवरऑल माइनस 0.2422। अब ये 2 कैंसिल, माइनस लॉग H प्लस की जगह pH लिख सकते हैं। दैट इंप्लाइज E cell is equal to
0.6996 minus 0.591 pH minus 0.2422। इन दोनों को सपरेट करेंगे तो क्या होगा? सर माइनस 0.0591 होगा इंटू पीएच। हाँ 0.0, अच्छा 0 मिस हो गया। ओके, सो ई सेल इज इक्वल टू 0. ये कितना आ रहा है? 6996 में से 2422 0.4574 0.4574 माइनस 0.0591 इंटू पीएच। अभी हमें पीएच चाहिए तो इसको इस तरफ ले आइए, ई सेल को राइट हैंड साइड ले आइए। दैट इम्प्लाइज 0.0 टाइम क्या हुआ? 0.0591 into pH is equal to 0.4574 minus E cell. That implies pH is equal to 0.4574 minus E cell divided by 0.0591. सही है? हाँ। ओके, एनी डाउट्स? अब इसका एडवांटेज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से एडवांटेज देखेंगे तो थोड़ा सा पिंच ऑफ साल्ट जो डाल देंगे तो काफी है, इसीलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्यादा इसको यूज कर सकता है। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है? 7 pH तक ही इसको, when pH is less than 7 then only we can use। अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन हो गया तो इसको यूज नहीं कर सकता है। रीजन भी बताया था, क्यों? क्योंकि QH2 जो है वो ज्यादा आयनाइज हो जाएगा और Q और QH2 का कंसंट्रेशन सेम नहीं मेंटेन होगा, इसीलिए हम कैलकुलेट नहीं करते। यहाँ ई सेल जो है पोटेंशियोमीटर से आ जाएगा, उसको सब्स्टिट्यूट करके pH निकाल पाएंगे। एनी डाउट्स? इसमें कोई डाउट्स है? नो सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब एक लड़का ने पूछा कि शुरू में कि H+ का तो ठीक है, H+ है बता रहे, बाकी आयंस का कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे ग्लास इलेक्ट्रोड। उसके लिए क्या यूज करेंगे? ग्लास इलेक्ट्रोड। इंपॉर्टेंट। नो, ग्लास इलेक्ट्रोड, ये ग्लास इलेक्ट्रोड में मेन खास बात जो है ग्लास का ही है। ये ग्लास जो है एक डिफरेंट टाइप का ग्लास है, ये आयन सेंसिटिव मेम्ब्रेन है। ये ग्लास जो है एक आयन सेंसिटिव मेम्ब्रेन है। इट इज ए आयन सेंसिटिव मेम्ब्रेन, आयन सेंसिटिव मेम्ब्रेन। इसका थिकनेस अगर देखेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर होगा ना, 0.005, एक और 0.005 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। ओके, तो इसका मतलब 0.05 मिलीमीटर इसका थिकनेस। इतना थिन ग्लास है। ये कैसे बनाते हैं? नॉर्मल जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड को मोल्टन स्टेट मतलब मेल्ट फॉर्म में लेके उसको कूल करेंगे। मोल्टन सिलिकॉन ऑक्साइड, इसको कूल करके हम इस ग्लास को तैयार करते हैं। हियर व्हाट हैपेंस, यह सिलिकॉन ऑक्साइड का जो है ये इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे सो 3 डायमेंशनल है, 3D स्ट्रक्चर रहता है। सो ऐसे यहां बीच में वो है ना, ऐसे 3D स्ट्रक्चर रहेगा। सो ये 3D स्ट्रक्चर में यहां देखेंगे, यहां जो गैप्स है ना, इस गैप्स में हमें आयन्स रहेगा, इस गैप्स में आयन्स रहता है। तो ये इस गैप के हिसाब से ये जो मेम्ब्रेन है, इस गैप के हिसाब से मेम्ब्रेन जो है ये एक आयन का सेंसिटिव बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस मेम्ब्रेन इज सेंसिटिव फॉर H+ आयन्स, या एक और मेम्ब्रेन होगा दैट इज सेंसिटिव फॉर Na+ आयन्स, एक और मेम्ब्रेन होगा दैट इज सेंसिटिव फॉर लिथियम आयन्स, पोटेशियम आयन्स, मैग्नीशियम आयन्स, कैल्शियम आयन्स या फ्लोराइड आयन्स। ऐसे एक एक मेम्ब्रेन जो है कुछ आयन्स का सेंसिटिव होगा।
मतलब ये उस आयंस को ही अपने थ्रू जाने देगा, ये उस आयंस को ही ये अपने थ्रू जाने देता है। तो ऐसे इस ग्लास इलेक्ट्रोड की यूज करके अलग अलग सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन निकाल सकता है। तो इस मतलब हम लोग जो है H+ का कैसे निकालेंगे वो हम आज देखते हैं, मतलब वो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, बस हम बता। तो H+ को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे ही एक मेम्ब्रेन लेंगे, उसमें Na+ आयंस हो पहले से, Na+, मतलब ये ग्लास वाले में Na+ आयंस है, Na+ ग्लास। इसको वाटर में बहुत देर, मान के चलिए 4-5 घंटे वाटर में सोक करेंगे, तब क्या होगा, ये Na+ आयन जो ग्लास में है वो H+ आयन से रिप्लेस हो जाएगा। अब ग्लास में H+ आयंस आ जाएगा और Na+ आयन जो है एक्वा सॉल्यूशन में चला जाएगा। ऐसे H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए ग्लास को H+ आयन सेंसिटिव बनाया है। अब इसको यूज करेंगे, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।